Hello my young friends, we are looking at this very fascinating story called The Last Leaf, which means Akhri Patta. This is written by that fascinating author called O. Henry, whose stories always have a very interesting twist. और इस कहानी में भी उस तरह का एक ट्विस्ट दिखाई पड़ता है. ये आपके CBSE इंग्लिश सिलेबस में है, मोमेंट्स किताब का चैप्टर नंबर 7. ओके, फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स. ये कहानी है 3 आर्टिस्ट की. एक ऑथर का नाम, एक आर्टिस्ट का नाम है सू, दूसरे का नाम है जॉन्सी एंड द थर्ड artist is called Behrman. Okay, so these are the 3 artists around which this particular story is written. Now, Sue and Johnsy are 2 young artists who shared a small flat, and Behrman was their neighbor. He also lived in the same building, and this flat was on the 3rd floor of an old house. Okay, now Johnsy fell ill, okay, because she had pneumonia, and she would lie in her bed thinking that she is going to die, and she had kind of worked herself into a very negative frame of mind. उनको लगता था कि अभी उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो इस निमोनिया की फीवर से बाहर उभर कर नहीं आ पाएंगी. The doctor came. He came every day, and there was no change in Johnsy's condition. And the doctor took Sue aside and asked her, किसी चीज से क्या जॉन्सी को किसी तरह का मानसिक दबाव पड़ रहा है? Is anything bothering Johnsy? So she says no. He says Johnsy has made up her mind. मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वह बेहतर नहीं होना चाहती. Because you remember, you think that always doctors say that medicines can do only this much. Every patient also has to have the willpower that he or she wants to recover. कि मेरे को recover होना है, मैं अस्पताल से बाहर निकलूंगा या निकलूंगी. That willpower has to be there, and many people actually have a very miraculous kind of a recovery because of their willpower. यहाँ पर डॉक्टर को लगता है कि जॉन्सी में वो willpower नहीं है. She does not want to get well is the feeling the doctor gets when he comes there every day. If she does not want to live, medicines will not help her. Okay, इस कोट को आप मार्क कर लीजिए, बिकॉज उनका कहना है कि अगर वह अच्छा नहीं होना चाहती तब किसी भी तरह की दवाई देने से उनको फायदा नहीं होगा, बिकॉज मेंटली शी इज नॉट काइंड ऑफ विलिंग कि मेरे को बेहतर होना है. शी इज नॉट इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, शी इज इन अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड. सू ने कोशिश की कि वो जॉन्सी की एक तरह का इंटरेस्ट बढ़ाएं to see things around her. She talked about clothes, she talked about fashion, but Johnsy ने किसी भी तरह का उत्तर नहीं दिया. She continued to lie on the bed, okay, and Johnsy वहाँ पर बैठकर पेंटिंग करने लगी ताकि लगे कि ओके कोई पेंट कर रहा है तो would keep seeing, so there would be some kind of your mind would get diverted, but Johnsy was simply not interested. She even whistled ताकि एक तरह से cheerful kind of an atmosphere लाने की कोशिश की सू ने. Then Sue heard Johnsy say something, and she says 12, 11, 10, 9. ये उल्टी गिनती क्या कर रही है, ये सू को समझ में नहीं आया. And then she saw an ivy creeper, the creeper kind of a plants which grow, okay, with nice looking leaves. It was growing halfway, and it was, since it was the autumn season और काफी wind हवा चल रही थी, उसकी वजह से काफी सारे पत्ते झड़ गए थे. Okay, what is it, dear? Sue asked. 6. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. कि उस ivy creeper पर 3 दिन पहले almost 100 पत्ते थे, अभी सिर्फ 5 पत्ते रह गए हैं. Okay, 6, and then she says 5. She says ये ऑटम का महीना है, इस सीजन में पत्ते झड़ते हैं हर जगह से, हर पेड़ से, हर पौधे से पत्ते झड़ते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है. ओके, आई हैव नोन दिस व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स. और ये जॉन्सी कहती है व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब वो आखिरी पत्ता गिर जाएगा, एंड आई हैव नोन दिस फॉर 3 days नाउ, मैं मर जाऊंगी. जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी. So Sue says that's nonsense. What have old ivy leaves got to do with you getting well? The doctor is confident that you will get better. So डॉक्टर ने क्या कहा वो सू को नहीं, जॉन्सी को नहीं बताती सू. वो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम अच्छी हो जाओगी, एंड व्हाट इज दिस नॉनसेंस, पत्तों के गिरने से तुम्हारे अच्छे होने का
क्या कनेक्शन है, और ये स्टोरी का थीम है। बिकॉज व्हाट द स्टोरी इज एसेंशियली डूइंग इज दैट जॉन्सी के मन में एक अंधविश्वास आ गया है, एक डर आ गया है, और डर की वजह से अंधविश्वास उन्होंने पाल लिया है कि जो आखिरी पत्ता है उससे उनकी जिंदगी के तार किसी तरह से जुड़े हुए हैं। शी हैज सुपरस्टिशियसली टाइड her life to that last ivy leaf. That's a superstition. And what is the superstition coming out of? Because of the feeling of negativity, the feeling of depression that she is under. Okay, so आप इन phrases का इस्तेमाल प्लीज अपने उत्तर में जरूर कीजिएगा। Okay, so Johnsy tries to cheer her up, saying that I will get you soup. He says, I don't want any soup. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves. So she's continuously counting the number of leaves on that ivy creeper, which she can see through the window. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. So you can see that she's in a very, very negative and a very pessimistic, काफी नकारात्मक mindset में Johnsy है. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, "You are not going to die. तुम मरने नहीं वाली हो. मैं कर्टन को बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है जब मैं पेंटिंग कर रही हूं। ओके, बिकॉज पेंटिंग करूंगी, बेचूंगी, तभी हमको थोड़े पैसे मिलेंगे। बट प्लीज बाहर, खिड़की से बाहर नहीं देखो और उन पत्तों को ऑब्वियसली मत गिनो। प्लीज डोंट लुक आउट ऑफ द विंडो एंड काउंट द लीव्स." Johnsy says, "Finish your painting, for I want to see the last leaf fall. I'm tired of painting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves." So she is hell-bent. Whatever Sue is saying is not having any impact, any effect on Johnsy. She says, "Ki I want to see the last leaf fall." So Sue says, "I have to paint an old miner." Miner मतलब जो कि कोयले की माइंस में काम करते हैं, तो उनकी एक पेंटिंग बनानी है। सो शी सेज, मैं बेयरमैन जो कि उनके पड़ोसी हैं उनको बुलाती हूं, सो दैट ही कैन सिट एंड आई कैन पेंट हिम एंड ही विल बी माय मॉडल, ताकि उनके बेसिस पे मैं एक माइनर की पेंटिंग बना सकूं। नाउ बेयरमैन कौन है? बेयरमैन वाज अ 60-year-old पेंटर, ओके, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। ये तीसरे माले पे रहते थे एंड ही स्टेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। And his lifelong dream, he was also a painter. उनका lifelong सपना था कि वे एक masterpiece बनाए ना। Masterpiece is something with which he can become extremely famous. और ये उनका सपना रहा था, और ये सपना ही रहा because उन्होंने एक masterpiece को नहीं बना पाए अपनी जिंदगी में। So बेयरमैन को जाके सू अपनी पूरी दिक्कत के बारे में बताती है। She says she is stupid. How can she be so foolish that she thinks of the leaves connection with her own life? So Sue बोलती है उनको काफी फीवर है and she refuses to eat or drink and that is worrying me a lot. So ये काफी अच्छे दोस्त हैं Sue and Johnsy, and even Behrman is obviously a very good neighbor. So he says, "I will come and see Johnsy." So वो जाती हैं। उस समय पर Johnsy सो रही हैं और अभी सिर्फ एक पत्ता बाकी है, the last leaf. On that creeper there is only one leaf left, but Johnsy is asleep at that point in time. और जिस तरह की बाहर हवा चल रही है उससे ऐसा लगता है कि वह आखिरी पत्ता भी कभी भी गिर सकता है। It could fall off any moment because of the strong gusty wind blowing outside, the icy cold wind. Johnsy अगले सुबह उठती हैं and she says to Sue कि पर्दे खोलो, and she says, "Oh, there is still that one leaf left on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce winds, it did not fall." कितनी हवा चली रात को, उसके बावजूद वो पत्ता गिरा नहीं, and it's looking quite green and healthy, she says. So Johnsy, ये Sue बोलती हैं, Johnsy बोलती हैं, "Yes, I heard the wind last night. I thought it would have fallen. It will surely fall today and then I will die." Okay, so Johnsy उत्तर देती हैं Sue को कि आज पक्का गिरेगा और फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। And Sue says, "You won't die, okay? And you have to live for your friends. What would happen to me if you die?" So obviously she tried to cheer her up, saying that you are not going to die, and if you die, what will happen to friends like me? So शाम को फिर से काफी हवा चलती है, काफी आंधी चलती है, लेकिन वो पत्ता फिर भी नहीं गिरता है। एंड जॉन्सी देखती रहती है कि कब पत्ता गिरेगा, कब पत्ता गिरेगा, बिकॉज मेंटली शी हैज टाइड हर ओन लाइफ एंड डेथ विद दैट लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर। एंड शी सेज, then she called out to Sue
and these lines are important. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. Because जब सूप लेके आए उन्होंने मना किया देखने के लिए, and all along she was in a very negative frame of mind. I have been depressed and very gloomy, काफी negative frame of mind में थी. And the last leaf has shown how wicked I was. That last, उस आखिरी पत्ते ने मुझे सिखाया है कि मैं काफी दुष्ट थी एक तरह से. I have realized that it's a sin to want to die. कि मरना एक तरह से, even in the Christian faith, it's not considered good to want to die, right? So it is a sin. एक तरह से पाप है मृत्यु की कामना करना. एंड व्हाट आई डिड वाज समथिंग रॉन्ग. एंड वो पत्ता जो कि गिरने से एक तरह से मना कर रहा है, इतनी आंधी चल रही है, इतनी हवा चल रही है, उसके बावजूद वो पत्ता नहीं गिर रहा है. इसका मतलब द पत्ता, द लीफ इज सेंडिंग मी ए मैसेज दैट आई हैव बीन विकेड एंड इट इज अ सिन टू वांट टू डाई. मृत्यु की कामना करना एक तरह से पाप है. और ये संदेशा मेरे को, ये संदेश वो आखिरी पत्ता मुझे दे रहा है. तो इसका एक तरह से एहसास अभी जॉन्सी को हो जाता है. एंड देन सू हग जॉन्सी बिकॉज ऑब्वियसली इट मेंट दैट शी हैड कॉट आउट ऑफ हर नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड शी गेव हर soup and a mirror and she kind of dressed herself, she combed her hair, etc. The doctor came and he said, oh, Johnsy now has the will to live. I'm confident that she will recover. अभी उनके मन में आ गया है कि अभी उसको जिंदा रहना है. तो now she will recover because mental mind is a very powerful organ in the human body. राइट मैं बेयरमैन को जाके देखता हूं बिकॉज ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. बट मुझे लगता है उनके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं है. ऑल्सो आई मीन ऑब्वियसली बिकॉज इज ऑल्सो 60 years old. The next morning, Sue came and sat on Johnsy's bed. She says, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia. This morning, he was ill only for 2 days. सिर्फ 2 दिन से ही बीमार थे. And the first day, the janitor found him on his bed. Janitor is someone who looks after the building. Okay. And his clothes and shoes were wet. And वो बाहर जब इतनी जो आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी, तब वे घर से बाहर निकले थे. और उनको घर के उनके कमरे में एक सीढ़ी मिली, एक लैडर और एक लैंटेन भी मिली, which was lying near his bed, lighted, and also some paint brushes or paint, green or yellow paint मिला. Okay, Johnsy dear said Zoo, look out of the window. अब तुम खिड़की से बाहर देखो और उस आखिरी पत्ते को देखो, उस आईवी लीफ को देखो. बिकॉज आपने ये सोचा है कि क्यों वो हवा इतनी चलती है फिर भी वे फड़फड़ाता नहीं है. द पत्ता डज नॉट मूव, द लीफ डज नॉट मूव. दैट्स बिकॉज दैट इज ड्रॉन, दैट इज पेंटेड बाय मिस्टर बेयरमैन. और ये बेयरमैन का मास्टरपीस है. जो मास्टरपीस वो अपनी पूरी जिंदगी में बनाना चाहते थे, उसको बना के उनकी मृत्यु हो गई है. ही पेंटेड इट लास्ट नाइट. जब वो आखिरी रियल पत्ता गिर गया था, तब रात को बैठकर बेयरमैन ने उस पत्ते को पेंट किया था, ताकि जॉन्सी को यह ना लगे कि वो आखिरी पत्ता भी गिर गया है. एंड मेंटली शी काइंड ऑफ फोर्सेस हरसेल्फ टू डाई. सो ही हैज सेव्ड जॉन्सी's लाइफ बाय पेंटिंग द लास्ट लीफ. सो the moral of the story, what O. Henry is trying to say, is that even if we have to face bad things, we should always help the people we actually love very much. And in this we see Sue really going out of her way to help Johnsy, and Behrman also proving to be a really good friend who helps these two friends stay together in life, even if he dies in the bargain. Okay, so इसमें दूसरी एक और बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर जब हम ग्रीन लीव्स को देखते हैं, हरे पत्ते को देखते हैं, हरा इज ए कलर विच काइंड ऑफ सिग्निफाइज होप. It conveys life, it signifies life, it signifies revival, जिंदगी, because when you get green crop, paddy, wheat, सब हरा रहता है, so there is a sense of life. Whereas yellow is the color of the autumn, जब पत्ते झड़ जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, एक तरह से गिरने का कलर येलो रहता है. The leaf when it kind of grows old, it turns yellow, right? So in that sense, the leaf, लास्ट लीफ के बारे में बात करके भी एक तरह से he has linked it with life and death. Okay, so that's an interesting metaphor that you would need to remember. Also for Johnsy, इन पत्तों को देखना एक तरह से उसका obsession हो गया था, because she had got into a very negative frame of mind. For Johnsy, the leaf had become a symbol of death, कि कब गिरेगा और कब मेरी मृत्यु होगी. The irony is that उसको निमोनिया था, जॉन्सी को, और बेयरमैन को भी निमोनिया हुआ.
सू को लगता था कि निमोनिया की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बेयरमैन ने अपनी जिंदगी दी अगेन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सेम निमोनिया। और मास्टरपीस की मैंने बात की, दैट मास्टरपीस इज समथिंग, जनरली कोई मास्टरपीस बनाता है तो लोग बोलते हैं कि वो अपनी उसकी जिंदगी के बाद भी जिंदा रहेगा, उसकी याद को ताजा रखेगा, एंड दैट्स व्हाट आयरॉनिकली हैपेंस इवन विद बेयरमैन। ओके, इसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेनली पर्सोनिफिकेशन। जैसे ये है, द वाइन इज किलिंग हर सेड सू, राइट, द स्ट्रीट्स रन क्रेजी, यू नो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सम यू आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, और उस तरह से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की बात की है ओ हेनरी ने, राइट। सिमिली का इस्तेमाल किया है, जॉन्सी वॉज लाइंग वाइट एंड स्टिल एज अ फॉलन स्टैचू, जहां पर भी लाइक का इस्तेमाल किया हो या एज का, दैट्स अ सिमिली एज ए लिटरेरी डिवाइस जिसका कि इस्तेमाल ओ हेनरी ने किया है। इसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं? शी इज अ ट्रू एंड फेथफुल फ्रेंड, राइट, इसको सब्सटैंशिएट करने की बात की जा सकती है, बिकॉज सू लव्स हर इन ए स्टेट ऑफ इलनेस, शी लुक्स आफ्टर जॉन्सी लाइक ए मदर, शी गेट्स हर आउट ऑफ हर डिप्रेशन, शी कुक्स फॉर हर एंड शी इज वेरी हैप्पी एट जॉन्सीज रिकवरी, राइट। किस तरह से जॉन्सी की जान बचाई जा सकती है? बिकॉज एक तरह से उन्होंने शी हैड लॉस्ट द विल टू लिव बाय मेकिंग हर फील मोर पॉजिटिव अबाउट लाइफ। What is Behrman's masterpiece? इसके बारे में प्रश्न is an important प्रश्न which can obviously be asked, and what is his dream and how does it happen? उसके बारे में अगर आप विस्तार से लिखें, you will be able to do it. So after you have gone through this video, please go through the story again, mark some of the important words and phrases, remember them to use it in the answers, और attention to detail होगा तो MCQs, जहाँ तक MCQs का सवाल है उसको आंसर करने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, राइट इन द कमेंट सेक्शन, मोर देन हैप्पी टू एड्रेस देम। थैंक यू वेरी मच।